السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بحث چل رہی ہے مقطوع اور موصول کی۔ مصنف نے 26 کلمات میں سے 19 کلمات کا خلاصہ بیان کر دیا 13 اشعار کے اندر یومہم تک۔ اب جو ہے 2 شعر اس باب کا رہ گیا ہے، 14 اور 15۔ اس میں جو ہے بقیہ 7 کلمات کو ذکر کریں گے، 20، 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 کو 19 کلمات آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ دیکھیے عبارت: وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاء تَحِينَ فِي الْإِمَامِ صِلْ وَأُهِّلَا، اور ان کا قطع ثابت ہے۔ وَقَطْعُهُمْ، پچھلے شعر کے اندر جو آیا تھا وَقَطْعُهُمْ أَمْ مَنْ يَشَاءُ مَنْ تَوَلَّى يَوْمَهُمْ، اسی کے ضمن میں اور اسی پر عطف کرتے ہوئے وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاء یہ بھی ہے، اور تَحِينَ فِي الْإِمَامِ صِلْ وَأُهِّلَا یہ جو ہے تو ترجمہ کیا کریں، اور اہل رسم کا قطع ثابت ہے، مَا لِهَذَا فَمَا لِلَّذِينَ اور فَمَا لِهَؤُلَاءِ میں، اور تحینہ کو مصحف امام میں موصول لکھو، اور یہ قول ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اہلا کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے، اور یہ قول غلطی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لام جارہ کے ھذا الذین ھؤلاء سے اور اسی طرح سے لا تحینہ کے مقطوع و موصول ہونے کی تفصیل بتلائی۔ ما لہذا کی کیا تفصیل ہے، یعنی لفظ مالی کی ان تینوں کلمات میں، یعنی ھذا الذین اور ھؤلاء میں لام جارہ جو ہے مقطوع ہے۔ ان میں پہلا کلمہ یعنی ما لہذا، ھذا والا کلمہ جو ہے 2 جگہ ہے، بقیہ جو دوسرے 2 ہیں الذین اور ھؤلاء یہ ایک جگہ ہے۔ جائے وقوع کی تفصیل یہ ہے کہ ایک جو ہے سورہ کہف کے اندر آیا ہے ما لہذا الکتاب، دوسرا سورہ فرقان میں ہے ما لہذا الکتاب آیت نمبر 7 میں، تیسرا جو ہے الذین کے ساتھ ہے فما للذین کفروا سورہ معارج کے اندر، اور چوتھا سورہ نساء کے اندر ہے فما لہؤلاء، فما لہؤلاء۔ اور ان چاروں کلمات میں لام جارہ کو ما استفہامیہ سے الگ الگ لکھا جائے گا، اور ان کے علاوہ ہر جگہ موصول لکھا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ یہ سمجھتے چلیں کہ علم رسم کے اصول کے مطابق ہر حرف بسیط مثلا واو، فا، میم، لام، حمزہ استفہام، ان کی کتابت اور تلفظ ان کے مابعد سے موصول ہونی چاہیے۔ لہذا حرف بسیط کو قطع کرنا یا اسی پر وقف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس اصول مسلمہ کے خلاف مذکورہ 4 جگہوں میں مقطوع لکھا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا یہ رسم الخط بہت سے اسرار رکھتا ہے، تو ان جو ہے 4 جگہوں میں اس اصول سے ہٹ کر کے لکھا جانا، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی لطافت اور نکتہ جو ہے پنہا ہے۔ مثال کے طور پہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان مواقع میں ما استفہامیہ سے اظہار تعجب مراد ہے۔ یہ جو 4 کلمات جو ذکر کیے گئے، 3 ہیں لیکن ایک جو ہے 2 جگہ ہے، تو ان میں جو ہے اظہار تعجب مقصود ہے، اور محل تعجب جو ہے لام کے مدخول ہیں۔ لام کے قطع سے اشارہ اس بات کا ہے کہ اگر
لام نہ بھی داخل کیا جائے تب بھی مدخول لام کی حالت سراپا تعجب ہی ہے۔ مثلا سورہ کہف میں اگر یوں کہا جائے کیف ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یعنی نامہ اعمال یا اعمال نامے جو ہے یہ کیسی کتاب ہے جو ہمارے صغیرہ گناہ کو نہ چھوڑتے ہیں نہ کبیرہ کو چھوڑتے ہیں۔ تو اگر یہاں پر لام نہ ہوتا تب بھی یہ جو ہے لام کا جو مدخول ہے وہ اظہار تعجب کے لیے ہے، اس لیے جو ہے لام کو یہاں پر قطع لکھا گیا۔ اسی طرح سے اور مواقع میں بھی آپ تفسیر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر جو ہے 4 جگہوں پہ لام کو جو ہے اس کے مدخول سے جو الگ لکھا گیا ہے اس کو جو ہے کیوں لکھا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لام کے قطع سے اس کے زائد ہونے اور ما کے برائے تعجب ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی لام نہ بھی ہوتا تو ایسا تعجب ہوتا، جیسا کہ علامہ بیضاوی کے بارے سے میں نے آپ کو بتلایا۔ اسی لیے صاحب اسہل الموارد نے ان 4 مواقع میں ما کو ما تعجبیہ فرمایا ہے۔ ان 4 کلمات میں ما اور لام دونوں پر وقف جائز اور صحیح ہے کیونکہ قطع ہو گیا، اور اس کی تائید جو علامہ متولی کے اس شعر سے ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شعر بھی سن لیجئے، شعر ان کا یہ ومالی وعین او بما فیہ ما فقف لکل علی التحقیق فی وقف الابتلاء، یعنی ومالی اور ایم کہ 2 لفظوں میں سے جس پر چاہے وقف کرو، وقف اختیاری یا وقف اضطراری میں تمام قراء کے لیے علی التحقیق یہی صحیح ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی قول ہے، مثلا عام کتب قرأت میں یہ تفصیل ہے کہ ابو عمرو بصری ما پر بلا خلف اور کسائی بالخلف وقف کرتے ہیں، اور باقی قراء لام جارہ پر، کیونکہ لام جارہ رسماً مقطوع ہے۔ تاہم لام جارہ سے یا مجرور سے کسی کے یہاں ابتدا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ما سے یا اس سے اوپر سے اعادہ ہونا چاہیے۔ اب جو ہے دوسرا لفظ اس شعر کے اندر ہے تحین۔ اس میں بہت لمبی بحث ہے لیکن آپ خلاصے کے طور پر تھوڑا سا وضاحت آپ کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ تحینہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تا کو لفظ حینہ سے مصحف امام میں موصول لکھا گیا ہے، مگر یہ رسم جو ہے ضعیف ہے، اور وجہ تضعیف یہ ہے کہ تمام مصاحف یعنی مکی، مدنی، بصری، کوفی، شامی وغیرہ میں تحینہ کو یعنی تا کو حینہ سے الگ ہی لکھا گیا ہے، اس وجہ سے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تا یہ حینہ کا نہیں بلکہ لا کا جزو ہے، یعنی لا تا حینہ الگ ہے۔ لہذا زیادہ صحیح اور راجح یہی ہے کہ رسم اور وقف دونوں میں تا کو حینہ سے نہیں بلکہ لا کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے، کیونکہ یہی رسم و قرأت کے باب میں مشہور اور متواتر ہے۔ مصحف امام والی جو روایت ہے اس کو شہرت حاصل نہیں ہوئی، چنانچہ اس پر علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشاہدہ بھی ذکر کیا ہے، اور باب القرات میں یہاں پر وقف بالتا اور وقف بالہا کے متعلق اختلاف ہونا بھی اس کی قوی دلیل ہے کہ تا کو حینہ سے الگ کر کے لکھا جائے۔ اب جو ہے سوال یہ ہے کہ تا کو حینہ سے ملا کر لکھنے میں اس کے قائل جو ہے علامہ ابو عبید ہیں، اور یہ رسم کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر رسم کے سلسلے میں مصحف امام یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کے مصحف کو ہی یہ جو ہے ترجیح دیتے ہیں اور اسی سے بیان کرتے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے
उस रस्म को देखा भी है। तो अब यहाँ पर दो सवाल पैदा होता है। एक सवाल ये होता है कि जब इमाम अबू उबैद रस्म के जलीलुल क़द्र इमाम हैं और वो मुसहफ़ इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत करते हैं, तो फिर उलमाए रस्म ने इनकी रिवायत का इनकार क्यों किया है? कहा है ना वो हिला, और ये रस्म जो है ज़ईफ़ करार दी गई है, यानी इसको ता को हीना से मिला करके लिखने की का गोया कि एक तरह से इनकार किया गया है। तो ऐसा क्यों इनकार किया गया? तो जवाब उसका यह है कि उलमा ने इस रिवायत का इनकार नहीं किया है, यानी ये नहीं कहा है कि रिवायत मुसहफ़ इमाम में नहीं है, बल्कि इस बात का इनकार किया है कि जो इस रिवायत के ज़िम्न में मज़कूर है, यानी लुग़त के एतबार से और लुग़त की रूह से ता जो है हीना का जुज़ है, ला नाफिया का नहीं, इसका उन्होंने इनकार किया है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि ता जो है ला का जुज़ है, हीना का जुज़ नहीं है। और दूसरा जवाब ये है कि दीगर उलमा ने इस रिवायत का जो इनकार किया है उसकी बिना क्या है, मसाहिफ़ हिजाज़ी, शामी और इराक़ी वगैरह उसमें जो है ता हीना से मौसूल नहीं है। ये हो गया इनकार करने की तौजीह, इनकार से क्या मुराद है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह होता है कि जब मुसहफ़ इमाम में तहीना ता के साथ मौजूद है, दूसरी है कि इसके रावी इमाम अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम रहमतुल्लाह अलैह नहायत मोतबर शख्स हैं, नीज़ इनकी रिवायात का अक्सर दारोमदार उसी मुसहफ़ इमाम पर ही है। ख़ुद नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह ने काहिरा के मदरसे फ़ाज़िलिया के अंदर उसके कुतुबखाने में मुसहफ़ इमाम की ज़ियारत की है, और जैसा उन्होंने अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम ने ज़िक्र किया वैसा ही पाया है। और भी एक मज़ीद बात यह है कि ख़ुद इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अन-नस्रुल कबीर के अंदर इस रिवायत और वस्ल पर कलाम करते हुए उनके दीगर दलाइल को बिला किसी जर्ह व तज़ईफ़ के बयान किया है, जिससे मालूम होता है कि उनकी ये रिवायत इल्मी एतबार से बावक़ात और मुसल्लम है। तो फिर इतने सारे शवाहिद और इतनी सारी बातें होने के बावजूद इमाम जज़री ने उहिला क्यों फरमाया? उसका जो है एक जवाब ये है कि यहाँ पर उहिला बमाना ज़ुइफ़ा है, गुल्लिता नहीं है, यानी तज़ईफ़ की गई है। और तज़ईफ़ इसलिए की गई है कि क़िराअत और रस्म दोनों एतबार से ता का हीना से क़तई साबित है और यह हद्द तवातुर तक पहुँचा है। दूसरा जवाब यह है कि मुसहफ़ इमाम की रिवायत फ़ी नफ्सी ही दुरुस्त है, गरचे है, लेकिन मुतवातिर के मुकाबले में ख़बर अहाद की हैसियत है, जिसको उलमाए अहादीस जो शाज़ कहते हैं। तीसरा जवाब यह है कि नाज़िम अल्लाम ने इस लफ्ज़ उहिला से अपने पेशरव मुसन्निफ़ीन की राय नकल की है, न कि अपनी राय का इजहार किया है। चौथा जवाब अल्लामा अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, जो राहिया की शरह में लिखा है। उससे यह मालूम होता है कि उहिला की ज़मीर अबू उबैद की तरफ राजिया नहीं है, यानी उनको ज़ईफ़ करार दिया गया है कि उनकी रिवायत ज़ईफ़ है, ऐसा नहीं, बल्कि मतलब ये है कि उनका ये मज़हब ज़ईफ़ करार दिया गया है, यानी वो अपनी रिवायत में ज़ईफ़ नहीं है। क्या कि उन्होंने ता को ला का जुज़ नहीं, हीना का ज़र्फ़िया का जुज़ माना है। जमहूर कहते हैं कि अगर ता को हीना से मिलाकर भी लिखा गया हो तब भी यही कहा जाएगा कि ता माने के एतबार से ला का जुज़ था, मगर खिलाफ क़यास हीना से मिलाकर लिख दिया गया। और मज़ीद अगर आपको तफसील देखनी है तो इसकी शुरूहात में आपको जो है मिल जाएंगी, मसलन अत-तक़दीमतुश शरीफ़िया है, अल-जवाहिरुन नक़िया है, इसी तरह से आपके जो अल-मुकाशफ़ातुज़ ज़ियाइया है वग़ैरह। फिर इमाम इससे जो है ख़ास हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसफ़ मुराद है, जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत फरमाया करते थे। जज़री के बाज़ नुस्ख़ों में ये मिसरा यानी तहीना वाला यूँ लिखा है, तहीन फ़िल इमाम सिल वक़ील ला,
तहीन फिल इमामी सिल व क़ील ला। ये जो है मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि ज़्यादा सही जो है वह उहिला ही है, लेकिन बाद लोगों ने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उहिला कहा जाए या जो है क़ील ला कहा जाए, क्योंकि दोनों से तमरीज़ मुराद होती है। और बाज़ लोगों ने तो फ़जीलत बतलाते हुए कहा है कि मुसहफ़ इमाम को एक तरह से फ़जीलत हासिल है। इस फ़जीलत की वजह से अगर वस्ल ही ज़्यादा कवी हो तो अजब नहीं, गरचे फ़स्ल बकसरत है लेकिन नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़ईफ़ हो, जैसा कि इब्न नाज़िम ने शरह में जो है ऐसा ही लिखा है। अब जो है आखिरी शेर रह गया यहाँ पर आपका, कालूहुम अव्वज़नूहुम सिली कदा मिन अलवहा वयाला तफसीली। कालूहुम और अव्वज़नूहुम को मिलाकर लिखो, इसी तरह अल, हा और या से उनके माबाद को जुदा मत करो। इस शेर के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल अब जो है आखिरी 24, 25 और 26 ये जो है ज़िक्र करना चाहते हैं, बल्कि 22, 23, 24, 25, 26 यानी 5 कलमात को ज़िक्र कर रहे हैं, कालू वहुम और अव्वज़नूहुम और इसी तरह से अल, हा और या, इसको बयान करना चाहते हैं। यानी कालूहुम अव्वज़नूहुम और लाम तारीफ़, हाय तंबीह और या निदा के मक़तू व मौसूल है, उनको यहाँ पर बयान कर रहे हैं। कालूहुम का मतलब वाज़े ये है कि दोनों कलिमात में, यानी कालूहुम और अव्वज़नूहुम दोनों कलिमात में वावे जमा के बाद अलिफ़ फ़ासिल नहीं लिखा जाएगा, जो कि वावे जमा के बाद अक्सर लिखा जाता है। अगर अलिफ लिखा गया तो मक़तू कहलाएंगे, क्योंकि अलिफ कलमे के तमाम होने को ज़ाहिर करते हैं, यानी मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। तो ये याद रखें, यहाँ पर जो है वाव तो हा से मिल नहीं सकता, तो जब वाव के बाद अलिफ न लिखा जाए तो ये मुत्तसिल समझे जाएंगे। इसलिए अगरचे दोनों अलग अलग कलमा हैं, ताहम रस्मन मुत्तसिल होने की वजह से दोनों में वावे जमा पर कोई वक्फ जायज़ नहीं होगा। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों मिसालों में, यानी कालूहुम और अव्वज़नूहुम में वाव के हुम से मिलने का इम्कान ही नहीं है। फिर सिल का क्या मतलब है? सिली जो कहा कि कालूहुम अव्वज़नूहुम को मिलाकर लिखो, तो वही मैंने आपको बतलाया कि असल में वाव जमा के बाद अलिफ़ फ़ासिल का न लिखा जाना ही इत्तिसाल है। तो यही कहना चाहते हैं कि इन दोनों में वाव जमा के बाद अलिफ न लिखो। आगे जो है कह रहे हैं कज़ा मिन अल वहा वयाला, यानी जिस तरह से कालूहुम और अव्वज़नूहुम में बगैर अलिफ फ़ासिल के मौसूल लिखना है, इसी तरह से कज़ा के तहत ज़िक्र किए हुए कलिमात को उनके माबाद से मिलाकर ही लिखा जाएगा। अब जो है उसमें पहला कलिमा क्या है? अलिफ लाम अल, खा तारीफ़ का हो और वो हुरूफ क़मरिया पर दाखिल हो या शमसिया पर, जैसे अल हम्द, अल हक़, अर रहीम, अर रहमान वगैरह। इसमें दोनों आ गए, हरूफ़े शमसिया और क़मरिया दोनों। आपको जो है शुरू में बतलाया गया था कि अगर इसको क़ता करके लिखते तो वो जो है जहाँ 26 कलिमात को एक नज़र में आपको दिखलाया गया था, वहाँ पर ऐसा अल अलग, हम्द अलग। तो बहरहाल अलिफ लाम से मुराद क्या है? अलिफ लाम तारीफ़ का हो या अल्लज़ी के माने में हो, जैसे अस्सारिक़तु वस्सारिक़ु, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु। इसी तरह से हाय तंबीह, इख्तिसारन हमेशा अपने मदखूल से मौसूल ही लिखा जाएगा, जैसे हा अंतुम, हा पे खड़ा ज़बर होगा, हा उलाई
खड़ा ज़बर होगा, फिर उसके बाद जो है हमज़े वाला वाव होगा, फिर लाई लिखा जाएगा। इसी तरह से हादा, हादानी, हा हुना वगैरह। ऐसे ही या हरफ निदा अपने मदखूल से इख्तिसारन बहस्ब अलिफ मौसूल होगी। जैसे आप कुरान में उठा के देख लीजिए, जहाँ पर या अय्युहा है तो वहाँ पर या अय्युहा में या पे खड़ा ज़बर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हमज़ा लिखा जाएगा। जैसे या नूहू, यहाँ पर या पे खड़ा ज़बर और फिर उसके बाद नून लिखा जाएगा, या के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा। अगर जो है या के बाद अलिफ लिखा गया तो फिर ये जो है मौसूल नहीं रहेगा बल्कि मक़तू हो जाएगा, मफसूल हो जाएगा। जिस तरह से कालू के वाव के बाद और वज़नू के वाव के बाद अलिफ लिख दिया जाए तो ये मक़तू हो जाता है। अब यहाँ कुछ दो चार बातें सुन लें, इसके बाद ये बहस अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। रस्म की इत्तिबा में इन कलिमात में न तो अल, हा और या पर वक्फ दुरुस्त है और न ही उनके मदखूल से इआदा सही है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू या हा उलाई, तो हा पर वक्फ भी सही नहीं है और उलाई से इआदा और इब्तिदा भी सही नहीं है। अगर ये अपने मदखूल से मक़तू लिखे जाते तो इनकी सूरत कैसी होती, आपको पहले बतलाया जा चुका है कि अल अलग हो जाता और हमद अलग हो जाता। इसी तरह से अल अलग हो जाता और सारिक सीन के साथ अलग हो जाता। अब यहाँ पर एक जो है बचकाना सवाल ये होता है, जबकि आप जानते हैं कि सिली और ला तफसीली का माहसल एक ही है। तालिब इल्माना सवाल क्या है कि कदा के ज़रिए तशबीह देना कैसे सही होगा, जबकि सिली और ला तफसीली में बज़ाहिर ये जो है तगायुर पाया जाता है, एक अम्र है और एक नहीं है। जवाब ये है कि बज़ाहिर इनमें तगायुर है, लेकिन हकीकत के एतबार से दोनों का माहसल एक ही है। वो इस तरह से कि ला तफसीली का मफ़हूम बेअैन ही वही है जो सिली का है, क्योंकि फसल की नहीं यहाँ पर है और वसल का अम्र है। दोनों का हसल और माल जो है एक ही है। वैसे भी आप माशाअल्लाह जानते हैं, सर्फ की किताबों में पढ़ते हैं कि फ़ेल की तकसीम जो है जब की जाती है तो बड़ी किताबों में फ़ेल की 3 ही तकसीम करते हैं, माजी, मुज़ारे और अम्र। अम्र के ज़िम्न में ही नहीं को शुमार किया जाता है, क्योंकि दोनों में ही हुक्म पाया जाता है। फ़र्क क्या होता है कि अम्र में किसी काम के करने का और नहीं में किसी काम के न करने का हुक्म होता है। इसलिए सिली और ला तफसीली में कोई तज़ाद नहीं है। एक कलमे को, अब आखिरी सवाल ये होता है कि एक ही कलमा बाज़ मसाहिफ में मक़तू है और दूसरे बाज़ में मौसूल, ऐसा क्यों, जबकि तमाम मसाहिफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही लिखवाए। ये पूरे हर कलमे के ताल्लुक़ से ये सवाल है। सवाल समझो पहले कि एक कलमा बाज़ मसाहिफ में मक़तू और दूसरे बाज़ में जो है मौसूल क्यों है, जबकि तमाम के लिखवाने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। उसका जवाब ये है कि एक कलमे को 2 तरह से लिखना मनकूल था, तो अब लिखने की एक सूरत तो ये थी कि एक ही मुसहफ में दोनों को लिख दिया जाए, और दूसरी सूरत ये थी कि किसी में मक़तू तो किसी में मौसूल लिखा जाए ताकि उम्मत इसको महफूज कर सके। अब पहली सूरत की एक ही मुसहफ में जो है दोनों तरह लिखा जाए तकरार हो जाती, लिहाजा इस तकरार से बचने के लिए दूसरी सूरत इख्तियार की गई कि जो है बाज़ में मौसूल और बाज़ में मक़तू लिखा गया। इस आखिरी शेर के बारे में और भी नुस्खे हैं। मसलन एक नुस्खा है अव्वज़नूहुम वकालूहुम सिली कज़ा मिन अल वहा वया ला तफसीली। एक नुस्खा है वज़नूहुम वकालूहुम सिली
कदा मिनल वया वहा ला तफसीली। बहरहाल अल्लाह के फजल व करम से बाब मारिफतिल मक़तू वल मौसूल जो इस किताब का सबसे तफसीली बाब है, अल्लाह के फजल व करम से आज इख्तिताम को पहुँचा। फलिल्लाहिल हम्द अला ज़ालिक। फिर जो है अब आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।